Hello, dear students. Welcome to today's class. Children, we are carrying on with your revision work. So, a lot of chapters that we have revised from different subjects. The revision work that is going on, in that revision work, you need to understand I am giving you important points. I am giving you important important topics, important questions that we are discussing. I was feeling very bad about something. Bad about what? Children, bad about your performance in your revision tests. Actually, it's not very satisfying. Please try and understand. The answers that you are writing, the questions that we are discussing, I had told you many a times that these questions are the questions exactly that would be asked in your board examinations. When you are understanding the board examination pattern, please try to attempt your answers in that manner only. Got it, children? That is there. So, what we are doing here is today we are starting with your revision for your test for 3.5. This is your revision test 3.5 where we are talking about agriculture. Agriculture is the chapter that we have completed recently. बिल्कुल अभी अभी हमने complete किया है the agriculture chapter. But still, now I would be giving you the board point of view questions and the questions that have been asked frequently in the board. Got it? So, सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर चैप्टर में which is very frequently asked for 1 mark. For 1 mark. What is that? That is the झूमिंग. ठीक है? Oblique slash and burn method. Same question, same answer. Jhum cultivation, slash and burn method, and primitive subsistence farming. एक ही आंसर है, अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है. You do not need to get confused. One of the sample papers, it was asked that the options were there. And please remember slash and burn agriculture when we are talking. Cultivation method that we are talking. इसमें this is also called as, एक नाम तो मैं भूल ही गई, and that was the shifting cultivation. क्या है shifting cultivation? Yes, first you have to give the explanation, because this is one of the major parts, major points of the subsistence agriculture, where very traditional tools are used. पहला तो इसको समझो that traditional tools are used. What are the major features? अगर features आता है 1 mark के लिए ये आ रहा है तो उसमें different वो है. If the features of primitive subsistence farming is coming, then you have to write it for 3 marks. Okay. You know, there are different names that are used for झूम cultivation at different places. अलग अलग जगह में झूम कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है. ठीक है? That was the question in your pre boards, and you were really confused. So you need to understand कि क्या क्या चीजें हैं, and primitive tools are used
traditional, or you can say primitive tools are used. Like hoe, dao, hoe, dao, digging stick. Another thing that is there कि वाटर इसमें जो है पानी के लिए अलग से अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है. इट डिपेंड्स अपॉन मॉनसून. बारिश होगी तो उसके हिसाब से ये मॉनसून के वजह से वो मॉनसून जो है जब बारिश होगी तो उसमें जो भी इसमें टेक्निक यूज होना है दैट टेक्निक इज यूज्ड. ओके. कोई अलग से वाटर अरेंजमेंट्स आर नॉट मेड एंड natural fertility of soil is maintained. Natural fertility and suitability of soil is maintained. एनवायरमेंट मतलब कि जैसा कि माहौल है, वॉट एवर काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज देयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंट नेम्स दैट हैज बीन देयर. ये डिफरेंट नेम्स आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. झूमिंग इज known with, and it is not only happening in India, it is happening in other parts of the world as well. तो आप पहले इसमें 1 मार्क के लिए जो हम करने वाले थे, झूमिंग को बाकी की जगह पे किस नाम से बुलाया जाता है, by what name is झूमिंग known in other parts of the world as well. Okay, slash and burn, slash and burn. लिस्ट बना लो. ठीक है, नहीं बनाना है, मैं आपको बना के दे रही हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा. ठीक है. मैक्सिको में it is known as milpa. Got it? अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका, वेनेजुएला में इट इज नोन एज कॉनुको. वेनेजुएला, कॉनुको. गॉट इट? ब्राजील में रोका. ठीक है. सेंट्रल अफ्रीका में भी ये होता है, इट इज कॉल्ड एज मसूला. सेंट्रल अफ्रीका. ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी. यस, इफ यू वांट 1 मार्क यू हैव टू रिमेंबर दिस लिस्ट. ओके. एंड लदांग इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में इट इज लदांग. वियतनाम में इट इज कॉल्ड एज रे. What you need to understand here is कि झूमिंग cultivation or slash and burn technique is not only used in India, it is used in other parts of the world as well. तो आपको हर जगह का नाम, because these could be asked in the fill in the blanks, it could be asked as. ये आप ये समझो कि इसको कहां कहां पूछा जा सकता है. fill in the blanks. ठीक है. दूसरा, मैच दी फॉलोइंग. एक तरफ कंट्रीज का नाम दे देंगे एंड ऑन द अदर हैंड साइड इट इज गिवन अबाउट ऑल द टाइप्स दैट इज देयर. मैच दी फॉलोइंग.
ओके, एंड मैच द फॉलोइंग हो गया. ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स कि इन मेक्सिको द स्लैश एंड बर्न टेक्निक इज नोन एज कॉर्नको, लेकिन मेक्सिको में इट इज नोन एज मिल्पा. गॉट इट. तो अब ये देख लो आप कैसे करोगे. अब इंडिया में देखो, यही तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बट यू आर अनेबल टू डील विथ लिस्ट. प्लीज रिमेंबर दिस लिस्ट, नोट इट डाउन समवेयर, अदरवाइज यू लूज ऑन 1 मार्क. अगर यू आर ओके विद दैट तब तो मत करना. डोंट टेक सो मच ऑफ एफर्ट्स. इंडिया में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मध्य प्रदेश में दहिया ऑब्लिक बेवर, दहिया एंड बेवर दोनों ही कहा जाता है, तो ये आप देख लेना. ओके. आंध्र प्रदेश में actually it is the primitive subsistence farming, ancient most method of farming technique. सबसे पुराना है, तो जब सबसे पुराना है तो उसको उसी तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर इट इन दैट मैनर ओनली. गॉट इट. ओके. आंध्र प्रदेश में कोडू ऑब्लिक पेंडा. ठीक है. उड़ीसा, उड़ीसा में पामादाबी. क्या नाम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, लेकिन याद तो करना है. गॉट इट. और कोमान, डिफरेंट नेम्स, ब्रिंगा. ठीक है. ओके. वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स मतलब जिधर आपका वेर यू हैव द केरला रीजन. गॉट इट. इट इज कॉल्ड एज कुमारी. ओके. साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इट इज कॉल्ड एज वलरे और वालत्रे. साउथ ईस्ट राजस्थान, वालरे ऑब्लिक वालत्रे. ओके. हिमालयन बेल्ट में इट इज कॉल्ड एज खील. हिमालयन बेल्ट खील. कुरुवा इन झारखंड. ये भी देखो कि सच अ लार्ज स्केल, आई मीन ये किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट हैपनिंग. it does happen, and it is playing a very important role in the agricultural techniques, in following the agricultural processes. तो क्या हम इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं? No, we cannot. हम इसको ऐसे नहीं इसको छोड़ सकते हैं. That's why I'm going in so much of detail. Okay? And नॉर्थ ईस्ट में जहां से कि अभी भी अब क्या है, बाकी के जगह पे ना इट हैज बीन लेस नाउ. क्या होता है, आपको जंगल जलाना पड़ता है, बर्न है ना, स्लैश एंड बर्न टेक्निक. सो अदर प्लेसेस इट इज गेटिंग लेस, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी हो रहा है, वेयर इट इज कॉल्ड एज झूमिंग. जंगल वहां बहुत ज्यादा है, तो अगर थोड़ा सा जंगल जला भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदर प्लेसेस जंगल इज फिनिशिंग. सो नाउ तो गवर्नमेंट हैज बीन बैनिंग इट, एंड आप इसका मेजर फीचर्स समझ लेना. One question that was asked, of course it was by mistake it was asked, लेकिन your preparation was absolutely nil. इससे मुझे पता चला कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है. तो एंड यस,
A frequently asked question for 3 marks क्या है? डिफरेंस बिटवीन primitive subsistence intensive intensive subsistence farming okay and then एक और है where which is very important बहुत ही important है very frequently asked is commercial farming primitive subsistence intensive subsistence and commercial farming इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको याद करना ही पड़ेगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में आई वाज शॉक टू नो दैट आपको पता नहीं है इंटेंसिव मीन्स थोड़ी सी जगह पे ज्यादा काम करना इंटेंस वर्क is needed in a very short time in a very small place एक्सटेंसिव आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है आप उस पर खूब सारा काम कर रहे हो दैट इज एक्सटेंसिव लेकिन ऐसा है नहीं हमारे यहाँ पे जो हमको ज्यादा काम करना पड़ता है दैट इज मोस्टली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज वेरी फ्रीक्वेंट एंड एक चीज है फर्स्ट इज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस and then you have to talk about the features of intensive subsistence. क्या लिख रही हूं मैं intensive actually na I am getting very disturbed with the kind of answers you all are writing हम इसको जितना भी डिस्कस करती हूँ आंसर्स आपके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं आते हैं तो इट इज वेरी रियली प्रॉब्लमैटिक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फीचर्स इज सबसे पहला है कि जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर इज देयर हाई पॉपुलेशन pressure on land this kind of farming is practiced ठीक है पहला तो ये हो गया कि ये आप इस तरह की जो फार्मिंग है जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो लैंड वहां ऑब्वियसली कम होगा तो कम से कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग कैसे कर सकते हैं दैट इज इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटेंस फार्मिंग देन इट इज लेबर इंटेंस बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है कम लोगों कम जमीन पे ज्यादा आउटपुट आपको चाहिए एंड which is not very good for land please understand lot of dawais used here ठीक है fertilizer and all lot of biochemical is used here lot of biochemical is used okay and higher production lot of biochemical is used for higher production ओके कम लैंड पे आपको ज्यादा चाहिए अब ये कहां पे होता है विच प्लेसेस दिस इज देयर इतना कम जमीन बिकॉज हाई पॉपुलेशन कहां कहां पे है तो
इट इज मेजरली उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है. एंड व्हाई इट हैज हैपेंड? हमको इंटेंसिव काम क्यों करना पड़ रहा है? In such areas, think of a situation when in such areas you practice primitive subsistence? No. जंगल है ही नहीं आपके पास जलाने के लिए. So slash and burn is negligible here. Hardly you will find jungle here. बिहार झारखंड में है, बिहार झारखंड में you will get. लेकिन यूपी, राजस्थान, एमपी, यहां पे आपको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ही है. बिलीव मी चिल्ड्रन. ओके, व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. प्लीज चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड. 3 नंबर पूरे चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि लैंड होल्डिंग्स हैव बिकम सो स्मॉल. व्हाई? सो इट इज बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस. पूर्वजों ने जो जमीन बांटी है, जो फोर्थ कमिंग जनरेशंस हैव टेकन इट फ्रॉम देयर, वो इट इज लैंड होल्डिंग इज बिकमिंग स्मॉल डे बाय डे. ठीक है. राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड, इज लीडिंग टू डिविजन ऑफ लैंड. बढ़ते जा रहे हैं ना, लैंड होल्डिंग्स छोटे होते चले जा रहे हैं. तो आप इसी से समझ लो. यू कैन जॉली वेल अंडरस्टैंड, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज हैपनिंग. नाउ लैंड होल्डिंग साइज is uneconomical, so the farmers continue to take maximum output from the limited land. ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर तो है ही, लेकिन राइट ऑफ इनहेरिटेंस के वजह से क्या हुआ? एक आदमी है जिसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में जमीन बट गई. फिर उन 4 बेटों के आगे फिर एक बेटे, 2 बेटे हैं, वो भी लैंड बट गया. तो व्हाट हैपेंस इज कि लैंड होल्डिंग साइज इज अनइकोनॉमिकल. बहुत ज्यादा प्लान करने के बाद भी आउटपुट कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी. सो द लैंड होल्डिंग साइज इज गेटिंग स्मॉल एंड farmers continue to take maximum output from limited land. तो आप ये समझ लो कि अब प्लीज वर्ड का मीनिंग भी समझने की कोशिश करो ना, कि हम उसको इंटेंसिव क्यों कह रहे हैं. Why are we calling it as intensive? Got it? So when we understand the meaning, जब आपको मीनिंग क्लियर होगा तो आपको आंसर्स भी लिखने में आसानी होगी. Enormous pressure is there on agricultural lands. कि आपको लैंड को फैलो छोड़ने के लिए टाइम ही नहीं है. यू कैनॉट लीव द लैंड लाइक दिस. हाँ, कि दैट लैंड गेन्स इट्स फर्टिलिटी बैक, उसके लिए आपके पास उपाय नहीं है. देयर इज नो वे लेफ्ट. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटेंसिव सबसिस्टेंस. इसमें राइट ऑफ इनहेरिटेंस जरूर मेंशन करना, नहीं मेंशन करोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको. इसके बाद जो था that was a bit simple one, but still I told you that satisfactory answers are still not available. Got it? That is the commercial farming. Now please understand, commercial farming is a big one, so you have to also prepare it for 5 marks. Here अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये जो चैप्टर है इसमें ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड कमर्शियल फार्मिंग ही सबसे ज्यादा पूछा गया है.
बिकॉज नाउ पहले क्या था कि पहले तो इट वॉज ओनली 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस, तो उन्हीं चैप्टर्स में से कितने बार डबल ट्रिपल क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन आस्क्ड। 3 मार्क्स में भी पूछा गया है, 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। सो 3 मार्क्स में द हाउ टू ग्रो द व्हीट दैट हैज बीन आस्क्ड। 5 मार्क्स में फिर क्या पूछा गया है, 5 मार्क्स में देन इट इज आस्क्ड कि about the features of commercial farming or the difference between commercial farming and intensive subsistence farming, इसका डिफरेंस आपको पूछा गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर, इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि ईच एंड एवरी ऑफ दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, और अभी तो बहुत कम हो गया है। योर क्वेश्चंस हैव बीन वेरी लेस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो क्वेश्चन चैप्टर्स इतने कम हो गए हैं कि उसमें से अब घुमा फिरा के वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कुड बी पुट अप। ओके, सो कमर्शियल फार्मिंग आपको बताना है। कमर्शियल फार्मिंग में सबसे पहला आपका इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द HYV सीड्स आर यूज्ड, हाई क्वालिटी modern inputs of agriculture are there। जो अभी इतने सारे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ है that has really increased a lot, modern inputs are used, new inventions that have been there। हाँ, ये जो नए नए तरीके हुए हैं उसका काफी भरपूर इस्तेमाल होता है। Please try and understand this thing. Got it? And then chemical fertilizers, HYV seeds are used। इसमें और भी चीजें आप ऐड कीजिए। Chemical fertilizers, insecticides, pesticides, this is used for higher productivity। Chemical fertilizers, insecticides, pesticides used on large scale for higher outputs। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के लिए ये आपका यूज हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड 2-3 पॉइंट्स आर देयर, आई शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ। Students, we have started with the revision work of your 3.5. 3.5 mein you have this agriculture chapter. So when agriculture chapter you have to do, we have made a different list. The first topic, the first point that we have done is, children, the types of farming. There are types of farming and there is cropping pattern. You do not need to get confused in that. The different types of farming, you are talking about primitive subsistence farming. इसमें the list that we have made, two kinds of list, two things are there जो कि आपको अच्छे से समझना है। क्या है? एक तो we are talking about झूमिंग, okay, and the different names that are there in different countries। दूसरा we are talking about the primitive form of cultivation in India। इंडिया में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको लिस्ट बता दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा, कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। इस तरह के फार्मिंग में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक्चुअली क्या ग्रो करते हैं? इट इज़ द स्लैश एंड बर्न टेक्निक, वेरी टेम्परेरी, एक जगह पे कुछ दिन के लिए रहते हैं फिर मूव कर जाते हैं। सो व्हाट आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, ठीक है, फॉर सम टाइम। तो बहुत एक्सटेंसिव rice and wheat, but you can say some vegetables are there, fruits are there,
एंड येस राइस एंड व्हीट इज़ ऑल्सो ग्रोन. मेज सबसे ज़्यादा जो चीज़ ये ग्रो करते हैं दैट इज़ मेज, दैट इज़ मक्का. ओके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस. माय मेजर कंसर्न वाज दैट यू प्रिपेयर फॉर सच पॉइंट्स एंड देन व्हाट आर प्लांटेशंस, इसके बारे में इसको अच्छे से एक बारी देख लेना. वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. गॉट इट चिल्ड्रन? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.